बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन डॉक्यूमेंटेशन और व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज कंसीडर्ड वाइटल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, गिव रीजन। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम्स एल्गोरिदम डिजाइन, कोडिंग मेथड, testing and proper usage. Documentation is valuable for the users who rely upon the program on a day-to-day basis and for the programmer who may be called on the modify or update it. यहाँ तक कि शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस पैराग्राफ में से आपको जो MCQ पूछा जा सकता है वो है, डॉक्यूमेंटेशन is a detailed description of program's algorithm. Documentation is valuable for the users who rely upon the program on a day-to-day basis. Next short question जो इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है वो है, write the steps involved in comprehensive documentation. Short question start होगा, in general comprehensive documentation consists of the following. सबसे first step है a description of what the program is supposed to do. इसे हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। सेकेंड स्टेप है a description of the problem solution, in short algorithm. Third step is a description of the program design including any aids used, flowcharts, algorithm, etc. Fourth point है a description of the program's testing process include the test data used and results obtained. Fourth point है a description of all corrections, modifications and updates made to the program since it we put into operation. Last point है a user manual और user guide. इस टॉपिक में से आपको जो MCQ पूछा जा सकता है वो है, a description of the program design include any aids used, flow charts and algorithm, etc. A description of the program's testing process include the test data used and results obtained. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिदम। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक्सरसाइज का भी लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, डिफाइन एल्गोरिदम, राइट अ स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम फॉर मेकिंग अ टेलीफोन कॉल टू योर फ्रेंड। नेक्स्ट, एल्गोरिदम से रिलेटेड कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, आप उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से इस लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन स्टार्ट होगी, एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स which if followed accomplish a particular task. An algorithm must be clear, finite and effective. The simplest form of algorithm is step form algorithm. Like a to-do list, it consists of a sequence of number steps. यहाँ तक इसकी definition complete हो जाएगी। इसकी definition में से जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं, an algorithm is a finite set of steps if followed accomplish a particular task. An algorithm must be clear, finite and effective. The simplest form of algorithm is step form algorithm, like a to-do list. Algorithm consists of a sequence of numbered steps. Next short question जो इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है वो है, strategy for developing algorithm. Algorithm development involves the following steps to carry out. We can proceed the correct solution of a particular problem by adopting the following स्ट्रैटेजीज आप कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टिगेशन। इसके पॉइंट्स हैं, आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस, आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस, आइडेंटिफाई द रेपिटेशंस, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। सेकेंड स्टेप है प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम। इसका पहला पॉइंट है डिवाइस अ हाई लेवल एल्गोरिदम, स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम, डज दिस वॉक थ्रू रिवील एनी मेजर प्रॉब्लम, इफ इट डज then correct the problems. Third step है refining the algorithm. Incorporate any refinements indicated in step 2. Group together processes where appropriate. Third step है group together variables where appropriate. Last step है test the algorithm again by testing through
इट। यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एल्गोरिदम से रिलेटेड कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स गिवन है। लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इन एग्जांपल्स को अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है यू हैव टू बेक अ केक इन योर हाउस। ये एग्जाम्पल है स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम की। स्टेप 1 से लेकर ये स्टेप्स भी आप कंप्लीट करेंगे। स्टेप 7 तक आपका फर्स्ट एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम 2 है मेकिंग टी, यू हैव टू मेक टी इन योर हाउस। और ये भी कौन सा एल्गोरिदम है? स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम स्टार्ट होगा पुट टी लीव्स इन पॉट से लेकर यहाँ तक ये एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस एल्गोरिदम में कुछ रिफाइनमेंट्स की गई हैं। आप ये रिफाइनमेंट्स भी अच्छे से रीड करेंगे। फर्स्ट रिफाइनमेंट, इसका फर्स्ट स्टेप है जिसे सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। स्टेप 2 है बॉयल वाटर, इसको भी मज़ीद रिफाइन करके सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया। स्टेप 5 तक ये रिफाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद है सेकंड रिफाइनमेंट। सेकंड रिफाइनमेंट के जो स्टेप्स हैं वो भी आप कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट होंगे स्टेप 2.1। 4 स्टेप तक ये रिफाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसमें ओरिजिनल एल्गोरिदम, फर्स्ट रिफाइनमेंट और सेकंड रिफाइनमेंट का कंपैरिजन किया गया है। आप इसकी भी अच्छे से रीडिंग करेंगे ताकि आपको इन तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझ आ जाए और आपके लिए एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करना और ज़्यादा आसान हो जाए। यहाँ तक कि कंपैरिजन का जो टेबल है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्गोरिदम की एग्जांपल्स पर, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड में आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट एग्जांपल है राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। आप ये एल्गोरिदम कंप्लीट करेंगे। बिगिन सम इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर लूप लगाया गया है डू वाइल का और उसमें कंडीशन क्या है? n इज़ लेस देन इक्वल टू 50। देन सम का फॉर्मूला है। उसके बाद नंबर में इंक्रीमेंट का फॉर्मूला, यहाँ पर लूप एंड होगा और लास्ट पर एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगा। एक बात का आपने हाथ से याद रखना है, जब भी आप एल्गोरिदम लिखेंगे स्टार्ट और एंड को मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। एल्गोरिदम स्टार्ट होगा बिगिन, सबसे पहले फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर उसे एंटर करेंगे। उसके बाद नंबर को इनपुट करेंगे। यहाँ पर फैक्टोरियल का फॉर्मूला गिवन है। लास्ट पर फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर आकर आपका एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों एग्जांपल्स शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।